Yeah, hello students, and welcome back again to our video tutorial. And in today's lecture we are going to start our new phylum, that is phylum Aschelminthes. The older name of phylum Aschelminthes was Nemathelminthes, or they are commonly known as nematodes. Up to now we have discussed about phylum Platyhelminthes, and Platyhelminthes are commonly known as flatworms. Today we are going to start the second part of worms, that is about roundworms. So phylum Aschelminthes, the older name of Aschelminthes is Nemathelminthes, or they are commonly known as, in questions they mainly use the term commonly as nematodes. So the topic of today would be general characteristic feature of phylum Aschelminthes. Today we will be learning about general characteristic feature, that would be the part of NCERT. Then for competition we will be learning about different examples of Aschelminthes in detail. First Ascaris would be discussed in detail, and with Ascaris I will be teaching you about Wuchereria, Ancylostoma, Dracunculus medinensis, Ancylostoma, that is known as hookworm, Enterobius formicularis, Trichinella spiralis, Trichuris, and last but not the least, loa worm. Is that clear? Aschelminthes, they are commonly known as roundworm. And why they are known as roundworm? Answer to that question is, when we take a cross section, so their body appears round in cross section. Normally they are cylindrical and tapering, cylindrical body with tapering end. But when we take a cross section, the body appear to be round in nature. That's why they are called as roundworm. Okay, the same scientist Geoghegan Biot, the guy who actually classified Platyhelminthes, the same scientist classified Aschelminthes, and there are about 15,000 of species of Aschelminthes which are well known. So starting with general features, I repeat, whenever in question you are going to learn about Nemathelminthes or nematode, they all the term mean the same. Aschelminthes or roundworm, they are the proper terms which must be used. Aschelminthes or roundworms are the proper term, and the associative terms are Nemathelminthes and nematodes. So starting with general features, today's lecture would be mainly focused on general features. So general features of these animals start. First we used to discuss about habitat. These animals, they could be free living or they could be parasitic in nature. Majority of them are parasitic. They could be parasitic in nature, and majority of them are parasitic. They are parasitic to animal as well as parasitic to plants. They are parasitic to animals as well as parasitic to plants. If I mention few example here, those Aschelminthes which are parasitic to animal, the classical example would be Ascaris. Apart from Ascaris, Wuchereria, Ancylostoma, and others which we are going to discuss in detail, they are all parasitic to animals. A nematode which is well known to be parasitic to plants is Melodogeny incognita. Melodogeny incognita. So जो Aschelminthes के मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं. फ्री लिविंग Aschelminthes आपको सोयल में मिल जाते हैं, माने दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर, और फ्री लिविंग Aschelminthes आपको वाटर में भी मिल जाते हैं.
classical example of free living Aschelanthes is Rhabditis, or the name is C. elegans. The classical example C. elegans soil के अंदर मिलता है, Sino Rhabditis elegans, or C. elegans is the classical example of free living Aschelanthes. इसको सिंपली रैप्डाइटिस भी मेंशन करते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थिस में बताया था कि जो रैप्डाइट्स हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर है टर्बुलेरियंस की बॉडी वॉल में। जो हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस का बॉडी वॉल पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू प्लेनेरिया पढ़ा था। जो रैप्डाइटिस होता है वो एक फ्री लिविंग राउंड वॉर्म होता है। तो जो राउंड वॉर्म्स हैं वो फ्री लिविंग भी मिल जाते हैं आपको और पैरासिटिक भी मिल जाते हैं। तो दैट इज देयर हैबिटेट एंड हैबिट। By their habitat they are living in water as well as terrestrial, and by their habit they are either free living or they are either parasitic. In our Aschelanthes topic we are generally going to discuss about parasitic roundworms. We are generally going to learn about parasitic roundworms. Second feature, if I talk about their level of organization, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर आपने पढ़ा था अ प्योर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और थोड़े बहुत ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जब टेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्केहेल्मिन्थिस राइट नाउ, एनसीईआरटी में जब प्लेटीहेल्मिन्थिस का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, और बाद में चैप्टर में जब समरी पढ़ेंगे तो वहां पर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों मेंशन है। एक्सप्लेनेशन टू दैट इज कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होने के बाद कुछ ऑर्गन सिस्टम भी बनाने शुरू कर देते हैं, और जो वेल डेवलप्ड सिस्टम बनते हैं वो राउंड वॉर्म्स में बनते हैं। तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा आप याद रखेंगे, दे आर हैविंग अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेट वी टॉक अबाउट देयर सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कोर्डेटा तक ज्यादातर एनिमल बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे कि जैसे गैस्ट्रोपोड ऑफ मोलस्क का एसिमेट्रिकल, एंड इकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो नेचर ऑफ सिमेट्री और सिंपली सिमेट्री अगर मैं मेंशन करूं यहां पर, इन देयर बॉडी द सिमेट्री इज बाइलेटरल डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस, दे एग्जिबिट अ बाइलेटरल सिमेट्री। इनका जो बॉडी फॉर्म होता है, द बॉडी फॉर्म अपीयरेंस में वो सिलेंड्रिकल होते हैं, इन आउटर अपीयरेंस दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर, सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस, और जनरली इनके जो एंड होते हैं वो टेपरिंग होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। अब टेपरिंग एंड्स का मतलब क्या हुआ, लेट मी टेल यू। अगर आप इनका डायग्राम वगैरह बनाएंगे सो दे वुड बी लाइक दिस, कि सिलेंड्रिकल बॉडी है लाइक ए सिलेंड्रिकल, और उनके जो एंड है वो तो कुछ ऐसे हैं। सो जो एंड से दे आर कॉनिकल इन शेप, और इन एंड को बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। तो फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, उसका बॉडी कुछ ऐसा है, एकदम पॉइंटेड नहीं होते, टेपर्ड होते हैं, और दूसरा एनिमल है उसका बॉडी कुछ ऐसा है। सो उनके जो एंड्स होंगे बॉडी के दे आर टेपरिंग हियर। ठीक है बेटा। देन अब अपने जनरल अपीयरेंस में तो सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनको राउंडवॉर्म क्यों कहते हैं, इन क्रॉस सेक्शन, तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, इन क्रॉस सेक्शन दे स्ट्रक्चर देयर बॉडी ऑर्गन्स they appear round, because in cross section they appear round, इसलिए उनको राउंड वॉर्म कहते हैं। और फ्लैट वॉर्म जो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी था इसलिए उनको फ्लैट वॉर्म बोला था। दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेल्मिन्थोलॉजी। और एस्केहेल्मिन्थिस का दूसरा नाम निमेथेल्मिन्थिस भी होता है। तो निमेथेल्मिन्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एस्केहेल्मिन्थिस और राउंड वॉर्म।
नेक्स्ट, अगर इनका नेचर ऑफ सिलोम की बात करें, अब तक जितने भी एनिमल पढ़ रहे थे, जो पहले 3 फाइलम थे, पॉलीफेरा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, उनके अंदर तो मेसोडर्म ही नहीं था। पॉलीफेरा तो हाइपोथेटिकली डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हैं हम, वो डिप्लोब्लास्टिक वगैरह होते ही नहीं हैं। और नाइडेरिया और टिनोफोरा में मेसोडर्म नहीं होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक है। सबसे पहले मेसोडर्म अपीयर हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और उनका मेसोडर्म कैसा पढ़ाया था? सॉलिड, तो उनके अंदर सिलोम वगैरह नहीं होती है। एस्केहेल्मिन्थेस में जो मेसोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में आ जाता है, और बाकी जगह जहां मेसोडर्म नहीं है वहां पर कुछ कैविटीज डेवलप हो जाती हैं, उन कैविटी को बोलते हैं फॉल्स सिलोम। तो नेचर ऑफ सिलोम जो पढ़ेंगे, द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर हैविंग सूडोसिलोम, जो हम व्हिटेकर साहब का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें ओनली एनिमल्स विच आर सूडोसिलोमेट्स दे आर एस्केहेल्मिन्थेस, दे आर एस्केहेल्मिन्थेस। सूडोसिलोम क्यों कहते हैं? एक बार कंसेप्ट रिवाइज करा ही देता हूं कि ये उनका एक्टोडर्म है, ये उनका एंडोडर्म है। एंडोडर्म किसको लाइन करता है? डाइजेस्टिव ल्यूमन को। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में होती है। मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पाउचेस। तो ये स्पेस बच गए, दिस स्पेसिस विच आर नॉट लाइंड बाय पेरिटोनियम, विच आर नॉट लाइंड बाय सिलोमिक एपिथेलियम, these species are known as pseudocoelom. So they are having a false body cavity which are not lined by peritoneum and we call that pseudocoelom. तो pseudocoelomates होते हैं। जो ये कैविटी है pseudocoelom, it is developed from एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी पढ़ते हैं आप, ब्लास्टुला में एक कैविटी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो वो जो ब्लास्टोसील होता है उसी से ये सूडोसिलोम डेवलप हुआ है। तो हम मेंशन करते हैं कि सूडोसिलोम इज डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। रिमेंबर, दीज स्पेसिस हियर आर नॉट सूडोसिलोम, दीज स्पेसिस हियर आर सूडोसिलोम। एक्चुअली द स्पेस हियर इज अ फॉल्स कैविटी। इज दैट क्लियर? तो नेचर ऑफ सिलोम में वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। अब ये भी बता दूं, इस स्पेस के अंदर कुछ स्पेशल सेल मिलती है। विदिन दैट स्पेस there are certain special cells which are present, और इनको बोलते हैं pseudocoelomocytes. Whatever cells are present here, they are not a part of mesoderm cavity. They are referred as to pseudocoelomocytes, pseudocoelomocytes. तो pseudocoelomocytes are the cell present in pseudocoelom. इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। ओके, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास ना स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। ये जो ये एनिमल्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इनके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है। तो जो भी बॉडी का शेप है वो इस फ्लूइड की वजह से ही बनता है। जो भी बॉडी का शेप है वो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड की वजह से मेंटेन होता है। तो ऐसा स्केलेटन जो एक फ्लूइड की वजह से मेंटेन होता है, उस स्केलेटन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। तो अगला कैरेक्टर पढ़ लेंगे, कैरेक्टर नंबर, जनरल कैरेक्टर नंबर 6, स्केलेटन। अ ट्रू स्केलेटन इज एब्सेंट, स्केलेटन इज मेंटेन्ड बाय सूडोसिलोमिक फ्लूइड एंड वी कॉल दैट हाइड्रोस्केलेटन। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है वो बाय सूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है, दैट इज बाय सूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो बच्चे आपने वहां पर पढ़ा था कि वहां पर पैरेन्काइमा होता है, वहां पर कहां? इन प्लेटीहेल्मिन्थेस दे आर हैविंग अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू व्हिच वी कॉल पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा वाज इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। हियर सूडोसिलोमिक फ्लूइड is meant for the transportation of material. So pseudocoelom is present which is not lined by peritoneum, which is derived from blastocele, consists of pseudocoelomic fluid and pseudocoelomatocytes. तो ये हो गया बच्चे नेचर ऑफ सिलोम के बारे में। देन पढ़ते हैं इनके बॉडी वॉल के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट देयर बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल आपने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस का,
तो उसमें तो आपने सिंपली पढ़ लिया था कि भाई सीलिया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सीलिया किसके पास थे? सिर्फ टर्बिलेरियंस के पास। बाकी टर्बिलेरियंस के पास रोड लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको रैप्टाइड्स कहा था। जब बॉडी वॉल ऑफ एस्के हेलमिंथेस पढ़ेंगे तो बॉडी वॉल विद द रेफरेंस ऑफ एस्केरिस बता देता हूं। इनका जब बॉडी वॉल पढ़ेंगे, इनका जो बॉडी वॉल होता है सबसे बाहर एक क्यूटिकल होता है, आउटसाइड इज क्यूटिकल और इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। जो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स है वो नॉन लिविंग मटेरियल का बना है, नॉन लिविंग मटेरियल, और टू बी एग्जैक्ट वो एक केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। और ये जो केराटिन प्रोटीन होती है, आपको याद होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन योर नेल्स एंड हेयर्स। दिस केराटिन प्रोटीन is resistant to enzyme. This keratin protein is resistant to enzymes. तो इनके बॉडी पे जैसे पैरासिटिक एडेप्टेशन इनके पास भी होता है, वहां पे तो तुमने पढ़ा थिक टेगुमेंट होता है। पैरासिटिक एडेप्टेशन में हुक्स एंड शकल्स होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। इनके पास जो सबसे बाहर का बॉडी का लेयर होगा उसको क्यूटिकल या कॉर्टेक्स कहेंगे। जो क्यूटिकल होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल का है और वो रेजिस्टेंट टू एंजाइम होता है। और टाइम टू टाइम क्यूटिकल शेड ऑफ होता रहता है। ये कुछ ऐसा है कि मैंने एक जैकेट पहना हुआ है, जैकेट लेदर का है, और जो जैकेट है वो मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है मैं अपना जैकेट चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। तो टाइम टू टाइम क्यूटिकल शेड ऑफ होता रहता है और नया क्यूटिकल बनता रहता है। जो शेडिंग ऑफ क्यूटिकल, शेडिंग ऑफ बॉडी आउटर लेयर की बात होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एक्डाइसिस। माउल्टिंग और एक्डाइसिस इज द शेडिंग ऑफ आउटर बॉडी वॉल और क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल है इट इज शेडेड एट टाइम्स एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज माउल्टिंग। तो माउल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ क्यूटिकल, और पुराना क्यूटिकल शेड हो जाता है और नया क्यूटिकल बन जाता है, आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन। तो आगे जब चल के पढ़ेंगे ना लाइफ साइकिल वगैरह, डेवलपमेंट वगैरह, तो वहां पे कंसेप्ट आएगा कि भाई इस एनिमल ने 4 बार माउल्टिंग किया, भाई 4 बार अपने क्यूटिकल को शेड करके नया क्यूटिकल बनाया। आर्थ्रोपोड में जब एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करेंगे तो वहां भी माउल्टिंग ही कहेंगे। वहां पे एक स्पेशल वर्ड आ जाता है एक्डाइसिस, माउल्टिंग की जगह। अभी यहाँ पर माउल्टिंग ही याद रखें। तो बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्यूटिकल है, उसको कॉर्टेक्स भी कहते हैं। वो नॉन लिविंग मटेरियल का बना है, केराटिन प्रोटीन जो रेजिस्टेंट होता है टू द एंजाइम, और वो टाइम टू टाइम शेड ऑफ होता रहता है, उस शेडिंग को बोलते हैं माउल्टिंग। नेक्स्ट टू इट, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट यहां पर होता है बेटा मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी लेयर देयर इज प्रेजेंट मैट्रिक्स। दिस बॉडी वॉल इज विद रेफरेंस टू विच एनिमल? एस्कैरिस। एस्कैरिस को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो एस्कैरिस के बॉडी वॉल से जो क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी कंसेप्ट से आंसर करेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है, मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू होगा। नेक्स्ट टू मैट्रिक्स इज प्रेजेंट स्पेशल प्रोटीन फाइबर्स। नेक्स्ट टू मैट्रिक्स इज प्रेजेंट अ लेयर ऑफ स्पेशल प्रोटीन फाइबर्स, और ये प्रोटीन फाइबर होते हैं कोलेजन प्रोटीन के। तो सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर मैट्रिक्स, उसके बाद कोलेजन प्रोटीन के फाइबर। हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ रहे हैं, यहां पर खत्म हो जाते हैं। ये एक्चुअली तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। केराटिन प्रोटीन इज आल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पार्ट, मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पार्ट, और कोलेजन फाइबर। तो कॉर्टेक्स और क्यूटिकल, मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर, ये तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट। फिर यहां पर आ जाती है एक मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन हियर इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद शुरू होना है इसका एपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद इसकी एपिडर्मिस होती है। इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत ही करेक्टरिस्टिक होती है। इसकी एपिडर्मिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस और राउंड वॉर्म, और आप क्यूटिकल आंसर नहीं करेंगे यहाँ पर। एपिडर्मिस इज डिफरेंट, क्यूटिकल इज डिफरेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसकी जो एपिडर्मिस होती है, फ्रॉम हियर टू हियर इज एपिडर्मिस, उसमें खूब सारा साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में खूब सारे न्यूक्लियस होंगे।
So there is a multinucleated mass of cytoplasm which is not differentiated into individual cell. देखो दो तरह का मल्टीन्यूक्लिएशन आप समझो, एक मल्टीन्यूक्लिएशन होता है कि ये स्ट्रक्चर मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी सेल है तो आप क्या बताएंगे? सर 4 सेल्स है। सेकंड, ये स्ट्रक्चर भी मल्टीन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस तो इसमें भी खूब सारे हैं, पर सेल कितने हैं? डिफरेंशिएटेड सेल तो नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर होता है अ मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इंडिविजुअल सेल, इसको बोलते हैं सिनकाइशियल एपिडर्मिस। तो इसका जो एपिडर्मिस होता है, फोर्थ इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज सिनकाइशियल, और सिनकाइशियल का दूसरा सिनकाइशियल का डेफिनेशन क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड mass of cytoplasm not differentiated into individual cell। या कुछ बुक्स में, कुछ क्वेश्चंस में आपको अनडिफरेंशिएटेड साइटोप्लाज्म लिखा रहेगा। अनडिफरेंशिएटेड साइटोप्लाज्म वो सिनकाइशियल होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स। इज दैट क्लियर? तो इनका जो एपिडर्मिस होता है उसको बोलते हैं सिनकाइशियल, और सिनकाइशियल के लिए एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं सिनोसिटिक। तो सिनकाइशियल नॉर्मली एनिमल्स में सिनकाइशियल ही यूज होता है, पर कहीं अगर आप सिनोसिटिक वर्ड यूज कर लें उसका मतलब भी होता है मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इंडिविजुअल सेल। तो बच्चे सबसे बाहर क्या हो गया? सबसे बाहर हो गया कॉर्टेक्स और क्यूटिकल, फिर हो गया मैट्रिक्स, फिर हो गया कोलेजन फाइबर, फिर आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है? एपिडर्मिस, जो होता है सिनकाइशियल, और एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे मिलेगी मसल्स। दे आर मसल्स हियर, और इसमें ये भी याद रख लेना सिर्फ स्मूथ मसल होती हैं, और स्मूथ मसल में भी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। नेक्स्ट इज मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर में कौन सी होती है? ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर देयर। रिमेंबर सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट हियर। तो अगर एक ट्रांसवर्स सेक्शन में यहां पर बना हुआ आपके लिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल, तो सबसे बाहर क्या मिलेगा आपको? यस प्लीज, यू कीप ऑन रिपीटिंग विद मी, दिस इज क्यूटिकल हियर, राइट? नेक्स्ट टू क्यूटिकल देयर वुड बी एन एरिया विच वी कॉल matrix. Next to matrix there would be certain fibers, and which fiber it would be? Collagen fiber. Let's say these are the collagen fibers here in red. Next to collagen fiber would be a membrane. Which membrane? Basement membrane. And basement membrane, let's say this here is basement membrane. This basement membrane would be followed by epidermis. So epidermis in case of SK helminthes is located beneath basement membrane. This is epidermis here. Epidermis of SK helminthes is syncytial, a multinucleated mass of cytoplasm which is not differentiated into individual cell. Syncytial, or let's call that cynocytic. Is that clear? और सबसे बाद में जो आते हैं at the last we found here certain muscles. और कैसी मसल्स मिलती है? सिर्फ longitudinal muscles, circular muscles are absent here. तो innermost layer is muscular layer, अगर अंदर से बाहर है muscular layer, epidermis, basement membrane, collagen fiber, matrix and cuticle। और अंदर से बाहर cuticle, matrix, collagen fiber, basement membrane, syncytial epidermis and muscular layer। तो ये हो गया बेटा इनके बॉडी वॉल के बारे में। Does it make a sense? I hope this is clear now. Please do remember Ascaris is having a syncytial epidermis, and epidermis is present beneath the basement membrane. All right, okay. Next जनरल फीचर पढ़ेंगे इनका अबाउट बॉडी प्लान। तो बॉडी वॉल पढ़ लिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये पढ़ लिया, सूडोसिलोमेट होते हैं ये पढ़ लिया आपने। जब बॉडी प्लान की बात करते हैं, अब तक जितने भी एनिमल पढ़े थे, क्या तो उनके पास सेलुलर एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान था या ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान था?
सबसे पहले जो बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप आता है, डेट इज इन एस्के हेलमिंथेस। सो बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर जनरल फीचर्स। तो इनके पास दो अलग अलग ओपनिंग होगी। वन ओपनिंग इज मेंट फॉर एंट्री ऑफ फूड विच वी कॉल माउथ, एंड अदर ओपनिंग इज मेंट फॉर एग्जिट ऑफ फूड विच वी कॉल एनस। इनके अंदर माउथ पहले बनता है, एनस बाद में बनता है। तो दे आर प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटोस्टोमिक। दे आर प्रोटोस्टोमिक इन नेचर, प्रोटोस्टोम्स। तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान एंड दे आर प्रोटोस्टोम्स इन नेचर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अब तक आपने क्या पढ़ा? अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटीहेलमिन्थेस में जो आपने अब पढ़े थे टेप वर्म वगैरह, उनके अंदर आपने पढ़ा था कि सूडो सेगमेंटेशन हो जाता है। एस्के हेलमिन्थेस के सारे मेंबर अनसेगमेंटेड होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ एस्के हेलमिन्थेस आर अनसेगमेंटेड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इनके अंदर इनके ना दोनों एंड टेपरिंग होते हैं। एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड बोथ आर टेपरिंग। तो एक वेल डिफाइंड हेड नहीं दिखता है आपको। फाइन, जब ये मूव करेगा तो पहले एंटीरियर एंड ही मूव होगा, सेंसरी स्ट्रक्चर भी उस तरफ होंगे, डेट इज ट्रू। पर आप एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन से नहीं बता सकते हैं कौन सा हेड है। सो अ वेल डिफाइंड हेड फॉर्मेशन के लिए क्या वर्ड यूज किया था? सिफेलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ हेड इज नोन एज सिफेलाइजेशन। अगेन द कंसेप्ट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वेल डिफाइंड सिफेलाइजेशन इज एब्सेंट। तो अगर आपसे पूछे वेल डिफाइंड हेड होता है इनके अंदर, यू विल आंसर नो, वेल डिफाइंड हेड इज एब्सेंट हियर। इज दैट क्लियर? अब पढ़ लेते हैं बेटा कुछ सिस्टम्स के बारे में। पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलेटरी तो बता ही दिया कि भाई उनका पास हाइड्रोस्केलेटन है तो सूडोस्टोमिक फ्लूइड करता होगा। बाकी जो जो सिस्टम्स है वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। अब इनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम तो दो अलग ओपनिंग है, कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग आ जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहला एनिमल जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था वो कौन थे? वो राउंडवॉर्म्स थे, वो एस्के हेलमिन्थेस थे। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, लेट्स से आई एम मेकिंग दिस स्ट्रक्चर हियर, देयर वुड बी अ माउथ व्हिच इज मेंट फॉर एंट्री ऑफ फूड। माउथ के बाद जो सेकंड पार्ट आता है, लेट्स से दिस इज फेरिंग्स। इनका जो फेरिंग्स होता है, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके पास खूब सारी मसल्स होती हैं। तो अ मस्कुलर फेरिंग्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। मस्कुलर फेरिंग्स इज देयर। मस्कुलर फेरिंग्स का क्या फायदा होता है सर? इट हेल्प टू सक आउट द होस्ट मटेरियल, होस्ट फूड। तो इनको एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होती है, ये सेमी डाइजेस्टिव या अनडाइजेस्टेड फूड को सक कर लेते हैं। हेल्प इन पावरफुल सकिंग ऑफ फूड। तो माउथ फॉलोड बाय ये मस्कुलर फेरिंग्स। दिस मस्कुलर फेरिंग्स इज इंपॉर्टेंट, आल्सो मेंशन इन एनसीईआरटी। देन इनका जो इंटेस्टाइन होता है, यहां पर भी अच्छा पॉइंट है। अगर आप इंटेस्टाइन की बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के, तो उनके इंटेस्टाइन मसल से कवर्ड होते हैं। मस्कुलर इंटेस्टाइन होता है प्लेटीहेलमिन्थेस में, और जो इनका इंटेस्टाइन होता है वो नॉन मस्कुलर होता है। दे आर हैविंग अ नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। लेट्स से दिस वाज द इंटेस्टाइन पार्ट हियर, इट इज नॉन मस्कुलर। And last, this opening here let's called is anus. This opening here is called as anus. तो complete digestive system होगा, muscular pharynx होगा, non muscular intestine होगा, और एक well defined anus होगा। ये normal digestive tract का representation दे दिया। ज़्यादातर एनिमल में कुछ ऐसा ही होता है, राउंड वॉर्म्स में। एक और मैं केस बता देता हूँ। एक केस आप ये पढ़ोगे आगे चल के कि लेट्स से ये आपका ना रिप्रोडक्टिव ट्यूब है, दिस इज रिप्रोडक्टिव ट्यूब एंड दिस इज डाइजेस्टिव ट्यूब, और डाइजेस्टिव ट्यूब और रिप्रोडक्टिव ट्यूब एक कॉमन ओपनिंग में ओपन हो रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्यूब और रिप्रोडक्टिव ट्यूब एक कॉमन ओपनिंग में ओपन होते हैं। ये जो कॉमन ओपनिंग है
जिसमें डाइजेस्टिव सिक्रेशन भी आ रहे हैं, आई मीन अनडाइजेस्टेड फूड भी आ रहा है जो एनस की तरह काम कर रहा है, और जिसमें स्पर्म्स भी आ रहे हैं जो जेनाइटल डक्ट की तरह काम कर रहा है, जेनाइटल पोर की तरह काम कर रहा है। इस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोका। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोका? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्लोका? क्लोका इज ए कॉमन ओपनिंग, अ कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड जेनाइटल सिक्रेशन। तो देखो दो केस हमने यहां पढ़ लिया है। कुछ एनिमल्स राउंडवॉर्म में ऐसे होंगे जिनका यहां पर माउथ, यहां पर एनस, एक वेल डिफाइंड एनस है। उन एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिक्रेशन की ओपनिंग अलग होगी। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? जेनाइटल पोर और गोनोपोर। ऐसे एनिमल जिनमें वेल डिफाइंड एनस होता है उनके अंदर जेनाइटल पोर अलग होता है। बाकी कुछ एनिमल्स ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, किस किस में केस हम आगे पढ़ते जाएंगे। एसकेएस की फीमेल में ये केस होता है कि उनके गोनोपोर अलग होते हैं, एनस अलग होता है। कुछ एनिमल में गोनोपोर नहीं होता है, एनस भी नहीं होता है। एक कॉमन ओपनिंग होती है जो एनस प्लस जेनाइटल पोर का काम कर रही है। उस कॉमन ओपनिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लोका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, a well defined anus is present in certain, in other a cloaca could be present. Is that clear बच्चे? Then डाइजेशन तो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे जैसे एनिमल एडवांस होते जा रहे हैं डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ही हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ बेटा इनका। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इज डन बाय सूडोसिलोमिक फ्लूइड। वो मैं बता चुका हूं, तो मैं यहां मेंशन करने की नहीं, मतलब नहीं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैनाल्स। कुछ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होती हैं, कुछ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में कैसा पढ़ा था कि सर स्पेशल सेल थी जिसके अंदर फ्लिकरिंग ऑफ सीलिया हो रहा था और उनको हमने फ्लेम सेल बोल दिया था। इनके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ कैनाल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए कैनाल लाइक दिस, देयर इज ए कैनाल which is something like this, there is other canal which is something like this, and these canals are interconnected with each other. So ये जो ये कैनाल का इंटरकनेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सारी की सारी कैनाल बाहर कैसे ओपन होती है? बाय ए सिंगल पोर विच वी कॉल एक्सक्रीटरी पोर। ऑल द कैनाल्स present in the body, all the interconnected canals present in the body, they open outside by a common opening, and that common opening is एक्सक्रीटरी पोर। अब इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं ये बात कर लेते हैं। पहले तो शेप कैसी नजर आती? इवन ए किड कैन टेल इट इज एस शेप्ड। सो दे आर एस शेप्ड, लार्ज इन साइज, तो वर्ड यूज करते हैं जाइंट। जाइंट एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड बाय इंटरकनेक्टेड कैनाल, और उनको बोलते हैं वेनेटे सेल्स। उनको बोलते हैं वेनेटे सेल्स। These are not real cells, these are the structure which are found by interconnection of canal. So Renate cell, giant S-shaped Renate cell, or we also call that protonephidia. We also call that protonephidia. क्यों प्रोटोनेफिडिया कह रहे हैं? क्योंकि नेफिडिया से पहले इवोल्व हो गए थे। अगले जो एनिमल पढ़ेंगे, अगला जो फाइलम पढ़ेंगे that is Annelida, उसमें नेफिडिया would be the excretory organ। तो जो भी नेफिडिया से पहले इवोल्व हुआ, चाहे वो फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट है या वो वेनेटे सेल्स हैं, वो क्या होते हैं आपके? दे फॉर्म प्रोटोनेफिडिया। तो खूब सारे एस शेप्ड वेनेटे सेल होंगे जो मिलके ऑर्गन एंड देन सिस्टम बना लेंगे। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइंट एस शेप्ड वेनेटे सेल। डज इट मेक ए पॉइंट? देन मोड ऑफ एक्सक्रीशन में मेजॉरिटी ऑफ देम वो अमोनिया बनाते हैं, आर अमोनोटेलिक।
एक ऐसा एनिमल भी होता है इनमें जो अमोनिया के साथ साथ यूरिया भी बनाता है, तो इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर एस्केरिस फॉर्म और एस्केरिस हैव डुअल एक्सक्रीशन, इट इज हैविंग डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। और ये क्या क्या बनाता है, इट इज मेकिंग यूरिया प्लस इट इज मेकिंग अमोनिया, अमोनिया। ठीक है बेटा, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो एक्सक्रीशन इज बाय इंटरकनेक्टेड कैनाल सिस्टम। द इंटरकनेक्टेड कैनाल मेक ए जॉइंट अ लार्ज एस शेप्ड structure which called rennet, and those rennet combine together and open outside by a common excretory pore. By mode of excretion, most of them are monotelic. Ascaris shows dual mode of excretion, and Ascaris is urotelic as well as amonotelic. Urotelic are those animals which produce urea. उसके बाद बच्चे इसका पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम की। अगर बात करें इनकी, देखो जैसे जैसे हम एनिमल पढ़ते जा रहे हैं तो ये अपने पहले वाले एनिमल के साथ कनेक्टेड होंगे क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस्ड हैं। इससे पहले हमने जो एनिमल पढ़े थे उनके अंदर ना लेडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। उनके अंदर नर्व कोड आ गई थी, सबसे पहले गैंग्लियाज आ गए थे, ट्रांसवर्स कॉमिसस आ गए थे। इनके अंदर एक नर्व रिंग बन जाती है और फेरिंग्स के चारों तरफ नर्व रिंग बनती है, तो उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। इनके अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज अ नर्व सेल हियर, अदर नर्व सेल हियर, अदर नर्व सेल हियर, लाइक दिस, और यहाँ पे फेरिंग्स वाला एरिया है, तो ये कुछ एक रिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं नर्व रिंग। इस रिंग का नाम होता है नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कमफेरेंजियल। सर्कमफेरेंजियल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है ओवर द फेरिंग्स। नर्व रिंग इज देयर। सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग के साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ कॉमिसस, इट कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियाज, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव्स। देखो गैंग्लिया का मतलब बताया था, अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल। कॉमिसस जो लाइक गैंग्लिया को कनेक्ट करे, कनेक्टिव जो अनलाइक गैंग्लिया को कनेक्ट करे, नर्व कोड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नर्व्स आर देयर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई फ्लैट वॉर्म में नर्वस सिस्टम लेडर टाइप था, राउंड वॉर्म में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो आप बोल देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। और नर्व रिंग के साथ साथ इनके पास नर्व कोड भी होती है जो सॉलिड है, जो वेंट्रल है। जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे सभी की नर्व कोड वेंट्रल और सॉलिड रहेगी, और मल्टीपल इन नंबर होती है। नर्व्स होती हैं, गैंग्लियाज होते हैं, कॉमिसस होते हैं और कनेक्टिव्स होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो वी आर डन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट अस डिस्कस अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स को बता देता हूं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स दे आर आल्सो डेवलप्ड इन राउंड वॉर्म्स। जनरली सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? सेंसरी स्ट्रक्चर होती हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस करके उसकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म को दे सके। सेंसरी स्ट्रक्चर सेंस करती है और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है नर्व सेल। पॉलीफेरा में कोई भी नर्व सेल नहीं बताया था आपको। सबसे पहले जो नर्व्स एराइज हुई थी, न्यूरॉन एराइज हुई थी, वो नाइजीरिया में हुआ था और उसके बाद एडवांस होती चली गई। इनके पास सेंसरी रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो टच को सेंस करते हैं, उन्हें टेक्टाइल रिसेप्टर कहते हैं। आई विल बी मेंशनिंग देयर टेंगो रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल को सेंस करते हैं, दे आर रेफर्ड एज टू कीमो रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेंसेशन के साथ साथ सिक्रेशन भी करते हैं, तो दे आर ग्लैंडुलर सेंसरी इन नेचर। तो दे आर मेनली 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर विच आर फाउंड इन राउंड वॉर्म। तो जब इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फर्स्ट यू विल बी रिमेंबरिंग अबाउट पेपिले। जो पेपिले होते हैं, पेपिले आप अपने टंग के ऊपर भी पढ़ते हो, तो पेपिला जो वर्ड यूज करते हो स्मॉल आउटग्रोथ के लिए वर्ड यूज करते हैं। आ स्मॉल आउटग्रोथ इज नोन एज पेपिले। पेपिले आर सेंसिटिव टू टच, और जो टच होते हैं उनको बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर, और
वी कॉल दैट टैक्टाइल रिसेप्टर, वी कॉल दैट टैक्टाइल रिसेप्टर। ऑल ओवर द बॉडी पेपिला प्रेजेंट होंगे। जब एस्केरिस का डायग्राम आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके लिप्स में, उसके माउथ में जो लिप्स होंगे वहां पे मैं पेपिला शो कर दूंगा आपको। तो पहला टाइप ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर जो उनके पास होता है, दे आर रेफर्ड एज टू पेपिले, एंड पेपिले आर प्रेजेंट एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर इन द बॉडी, एंड दे आर टेंगल रिसेप्टर और टैक्टाइल रिसेप्टर। दे रेस्पॉन्ड टू व्हाट? दे रेस्पॉन्ड टू टच। कुछ पेपिले आप पढ़ेंगे वो टेस्ट के लिए भी रेस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए मैं मेंशन कर दूंगा कौन से हैं वो एसके इसके स्ट्रक्चर में आएगा। तो अभी आप पेपिले याद रखें, वो टच रिसेप्टर्स होते हैं। सेकंड होते हैं बेटा फेजमिड। सेकंड पहले एम्फिड बता देता हूं। सेकंड टाइप ऑफ रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी आर एम्फिड्स, और एम्फिड्स होते हैं कीमो रिसेप्टर। दे रेस्पॉन्ड टू केमिकल नेचर ऑफ द एनवायरमेंट। और जो थर्ड रिसेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं फेजमिड। और जो फेजमिड्स होते हैं दे आर ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर, दे आर ग्लैंडुलो सेंसरी इन नेचर। तो ग्लैंडुलो सेंसरी का मतलब हुआ बेटा, ग्लैंडुलो दे आर सिक्रेटरी इन नेचर एंड दे आल्सो डू द सेंसेशन फंक्शन। किस चीज को सेंस करते हैं? आंसर इज केमिकल। तो फेजमिड इज कीमोसेंसरी एज वेल एज सिक्रेटरी नेचर, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लैंडुलो सेंसरी। तो तीन तरह के उनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन इज तीन तरह के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। वन इज पेपिला, सेकेंड इज एम्फिड एंड थर्ड इज फेजमिड। और फेजमिड के ऊपर क्लासिफिकेशन भी करेंगे, दो ही क्लास पढ़ेंगे इसमें, फेजमिडिया एंड एफेजमिडिया, जिसमें फेजमिड होते हैं जिसमें फेजमिड नहीं होते हैं। अब पढ़ लेते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द नेक्स्ट वुड बी अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये एडवांस्ड एनिमल है तो इनके सिस्टम्स भी एडवांस होते चले गए होंगे। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, जो राउंड वॉर्म्स होते हैं उनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दे शोज सेक्सेस आर सेपरेट। पहली चीज तो यही याद रखेंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस में सारे हर्माफ्रोडाइट थे विद द एक्सेप्शन ऑफ वन, सिर्फ ब्लड फ्लू की था जो जिसके अंदर सेक्सेस सेपरेट थे। इनके अंदर जनरली सेक्सेस और सभी के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, याद रखें, इनमें हर्माफ्रोडाइट एनिमल नहीं होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं ये। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये भी होता है जब आप बाहर से ही देख के बता देते हो विच वन इज मेल और विच वन इज फीमेल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे शो करते हैं? मेल का जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है और जो फीमेल का लेंथ होता है वो लॉन्गर होता है। तो जनरली फीमेल इज लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स आर लॉन्गर, मेल्स आर शॉर्टर। मैं बना देता हूं, लेट से एक आपने फीमेल यहां पे बनाया एंड दिस इज लाइक दिस। मेल जब यहां पे बनाएंगे, दिस इज द मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज लाइक दिस। जो मेल होता है उनका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कर्व्ड होता है, समथिंग लाइक दिस। द मेल पोस्टीरियर पार्ट इज कर्व्ड। फीमेल में कर्व नहीं होता है। फीमेल पोस्टीरियर पार्ट कुड बी लाइक दिस बट इट इज नॉट कर्व्ड। तो बाहर से ही देख के पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है। टेपरिंग एंड, लॉन्गर लेंथ, शॉर्टर लेंथ। टेपरिंग एंड तो है पर जो टेल वाला पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कर्व है। तो मेल शॉर्ट होते हैं विद कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, विद कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। फीमेल लॉन्गर होती है विद टेपरिंग एंड्स। एक तो नॉर्मल सा आप देख के बता दो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। देन मेल के पास क्लोका होता है। मेल पे यहां पे एक ओपनिंग है जो दोनों का काम कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोका। फीमेल के पास क्लोका नहीं होता है। फीमेल के पास यहां पर ओपनिंग है जो एनस का काम कर रहा है और यहां पर एक ओपनिंग है जो इसके गोनोफोर का काम कर रहा है। तो फीमेल में गोनोफोर और एनस अलग अलग होते हैं। मेल्स में क्लोका होता है, गोनोफोर नहीं होता है। एक्सटर्नल
रिप्रेजेंटेशन तो लेंथ और कर्व्ड एंड याद रख लेना बेटा। अगर और आप पढ़ना चाहते हो और चीज़ें याद रखना चाहते हो, जो मेल्स होते हैं उनके कर्व्ड एंड पर यहाँ पे 2 स्पिक्यूल होते हैं, दैट 2 स्पिक्यूल विच आर प्रेजेंट देयर, और वो मीटिंग में हेल्प करते हैं। इनको बोलते हैं जेनाइटल सीटे और स्पिक्यूल, जेनाइटल सीटे और स्पिक्यूल। और क्योंकि ये मीटिंग में हेल्प कर रहे हैं, इनको कॉपुलेटरी सीटे और कॉपुलेटरी स्पिक्यूल भी कहते हैं। कॉपुलेटरी सीटे और कॉपुलेटरी स्पिक्यूल, जेनाइटल सीटे और जेनाइटल स्पिक्यूल। हाउ मेनी आर देयर इन नंबर? दे आर 2 इन नंबर। तो जो मेल ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जनरली जेनाइटल सीटे, जेनाइटल स्पिक्यूल या कॉपुलेटरी सीटे प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। फिर गोनेड्स के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल शॉर्ट होते हैं, फीमेल लॉन्गर होती है। मेल की जो टेल है वो कर्व्ड होती है, फीमेल की टेल टेपरिंग होती है। मेल के अंदर कॉपुलेटरी और जेनाइटल सीटे एंड स्पिक्यूल होते हैं, फीमेल में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मेल के अंदर क्लोका होता है, फीमेल के अंदर एनस होता है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टर हो गए इनके। मोरएवर अगर इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें, जो राउंड वर्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली। तो दे शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर आप ये याद रखेंगे इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इंटरनल, दे शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जाइगोट। अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इट कुड बी इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट बिना लार्वा के भी हो जाता है और ज़्यादातर केस में लार्वा आ जाता है, और जब लार्वा आएगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आएगा। मैं कुछ लार्वा के नाम भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर जो आगे आपको हेल्प करेंगे। देयर आर सर्टेन लार्वास विच आर फाउंड इन एस्केहेलमिन्थेस, फॉर एग्जाम्पल larva of Ascaris and larva of Enterobius. Larva of Ascaris and larva of Enterobius is rhabditiform larva. समझ में आता है, फ्री लिविंग लार्वा है और देखने में कैसा है, रैब्डाइटिस के जैसा है, इसलिए रैब्डिटिफॉर्म लार्वा नाम है। जो वुचरेरिया होता है, वुचरेरिया उसका जो लार्वा है, वुचरेरिया को बोलते हैं फिलेरिया वर्म। तो लार्वा के लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रोफिलेरिया लार्वा। द नेम ऑफ लार्वा इज माइक्रोफिलेरिया लार्वा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एंसाइलोस्टोमा होगा, एंसाइलोस्टोमा इट इज हैविंग अ लार्वा विच वी कॉल फिलेरिफॉर्म लार्वा। इट इज हैविंग अ लार्वा विच वी कॉल फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो बेटा डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो जाता है और इनडायरेक्ट भी हो जाता है, और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो कुछ लार्वाज आएंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लार्वा, कुछ लार्वा का नाम यहाँ मेंशन कर दिया मैंने। उसके बाद जो लास्ट फीचर आप याद रखोगे जनरल कैरेक्टर में, फिर एक नॉर्मल आपको रिवीजन करा देता हूँ इसका। इनमें एक फीचर होती है, इसको बोलते हैं यूटैली। पहले यूटैली का मतलब समझ लो क्या होता है कि मैच्योरेशन के बाद अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नंबर ऑफ सेल ना बढ़े, न्यूक्लियस डिवाइड ना करे, तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी व्हेन द नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट वी कॉल दैट प्रॉपर्टी एज यूटैली। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी number of cell do not increase, number of cell do not increase। तो उस फीचर को बोलते हैं, उस फिनोमेना को बोलते हैं यूटैली, जो मेनली राउंड वर्म शो करते हैं, जो मेनली राउंड वर्म शो करते हैं। और कौन सा राउंड वर्म करता है, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस और सी एलिगेंस का क्लासिकल एग्जांपल। तो इसलिए सी एलिगेंस को आप रिसर्च पर्पस में बहुत यूज़ करते हैं। जब हमें एजिंग वगैरह पढ़ना होता है कि एज के साथ साथ क्या क्या फीचर चेंज होते हैं, तो हम सी एलिगेंस को एज ए मॉडल एनिमल ले लेते हैं कि क्या फीचर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यूटैली इज ए प्रॉपर्टी विच इज फाउंड इन राउंड वर्म्स
यूटेली का मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ सेल डू नॉट इंक्रीज आफ्टर मैच्योरिटी और टोटल नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है बेटा, ये हो गए। अच्छा, एक दो कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब इन एग्जांपल को वन बाय वन पढ़ लेंगे। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल मेंशन कर दूं मैं आपको, इतने काफ़ी हैं। और एग्जांपल्स में अगर याद रखें, लेट अस मेक ए लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स हियर। एग्जांपल्स ऑफ राउंड वॉर्म, पहला कौन सा था? रैबिडाइटिस, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताई जाएगी आपको। फिर आप पढ़ेंगे एस्केरिस के बारे में। फिर उसके बाद आपको बताना है वुचरेरिया के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे हुकवॉर्म, बड़ा खतरनाक होता है, एंसाइलोस्टोमा। फिर पढ़ेंगे पिनवॉर्म, जो छोटे बच्चों को एनल इचिंग हो जाती है, एंटेरोबायस, वर्मिकुलरिस। फिर पढ़ेंगे बेटा ट्राइशिनेला के बारे में, ट्राइशिनेला स्पाइरलिस। आप ये भी याद रखना, ज़्यादातर तो ये ओविपेरस होते हैं, मोस्टली ओविपेरस। एक करेक्टर और लिखवा देता हूं मैं, पर कुछ होते हैं जो ओवोविपेरस होते हैं, फ्यू आर ओवोविपेरस। और सिंपली मैं विपेरस साउंड वॉर्म का एग्जांपल लिख देता हूं। विपेरिटी इज शोन बाय 2 राउंड वॉर्म, वन इज वुचरेरिया। ओवोविपेरस का मतलब होता है जब एग इनसाइड द बॉडी ही हैच हो जाता है। विपेरस का मतलब जो यंग वन को बॉर्न देते हैं, ओविपेरस का मतलब जो एग को ले करते हैं। तो अगर डायरेक्टली एग ले कर रहे हैं तो ओविपेरस, और अगर एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाता है तो यंग वन बोर्न होता है, लार्वा बोर्न होता है, तो विपेरस। सो दे आर ओविपेरस और सिंपली कॉल्ड एट विपेरस। एक वुचरेरिया याद रखना, एक ट्राइशिनेला स्पाइरलिस याद रख लेना। ये 2 क्लासिकल एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म में जो विपेरस होते हैं। फिर आपको बताऊंगा मैं ट्राइक्यूरिस के बारे में। एक पढ़ेंगे ड्रैक एंकुलस मेडिनेंसिस, और लास्ट में वी विल बी क्लोजिंग अवर टॉपिक ऑन लोआ वॉर्म, जिसको आई वॉर्म कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब वन बाय वन ये एग्जाम्पल से डिस्कस करने हैं। हम शुरुआत करेंगे एस्केरिस से, रैबिडाइटिस को बाद में पढ़ लेंगे। तो ये हो गए जनरल फीचर्स ऑफ एस्केहेलमिंथिस। ऑन ए क्विक रिवीजन, एस्केहेलमिंथिस को राउंड वॉर्म कहते हैं। राउंड वॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन में बॉडी राउंड अपीयर होता है। एस्केहेलमिंथिस के मेंबर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। पैरासिटिक होते हैं, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी, और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का क्लासिकल एग्जाम्पल होगा रैबिडाइट्स। पैरासिटिक टू प्लांट और पैरासिटिक टू एनिमल हम पढ़ ही चुके हैं, एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नो फन इन टेलिंग। सूडोसिलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अनसेगमेंटेड हैं, हेड विजिबल नहीं होता, बॉडी शेप सिलेंड्रिकल होता है टेपरिक एंड के साथ, बॉडी वॉल में क्यूटिकल होता है बाहर और एपिडर्मिस होता है सिंकाइशियल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, मस्कुलर फेरिंग्स होती है, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है, एनस इज प्रेजेंट और क्लोका इज प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम सूडोस्लोमिक फ्लूइड से होगा, स्केलेटन भी हाइड्रोस्केलेटन होगा, नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल रिंग एंड अदर कंपोनेंट। उसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सी सेपरेट रहेंगे, फीमेल लॉन्ग होती है, मेल शॉर्ट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है, और इनडायरेक्ट होंगे तो कुछ फीचर्स लाभ आ जाएंगे। तो बच्चे ये हो गया अबाउट द जनरल फीचर्स और इंट्रोडक्शन टू एस्केहेलमिंथिस। वो एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया है वो हमने कवर कर लिया इस लेक्चर में। एनसीईआरटी लेवल इज डन। अब इन नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे फ्रॉम एस्केरिस। पहले एस्केरिस को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, एस्केरिस की लाइफ साइकिल, एस्केरियासिस के बारे में। फिर हम वुचरेरिया को पढ़ेंगे, वुचरेरिया कौन सी बीमारी कॉज करता है ये बताता जाऊंगा मैं, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, और बाकी सारे कौन कौन सी बीमारी कॉज करते हैं इनके बारे में बताऊंगा विद देयर फीचर्स। किसको हुक वॉर्म कहते हैं, किसको पिन वॉर्म कहते हैं, कैसे इन्फेक्शन होता है एंड ऑल दैट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे लेक्चर. In the next lecture we are going to start about ascaris. Please go through the whole lecture, ask me doubt if there is any. Thank you, take care, stay safe, class is dismissed.